डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर दीप्ति श्रीवास्तव, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर, आज आप लोगों को फाउल की गर्डल्स के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले पेक्टोरल गर्डल। द पेक्टोरल गर्डल is very stout bony structure connected with the sternum on either side to support the wings. On either side, it consists of a scapula, coracoid and a clavicle. फाउल में पेक्टोरल गर्डिल एक स्टाउट बोनी स्ट्रक्चर होता है जो कि स्टर्नम के दोनों तरफ विंग्स को आधार प्रदान करता है। दोनों तरफ पेक्टोरल गर्डिल स्कैपुला, कोरेकॉइड तथा क्लेविकल से मिलकर बनती है। स्कैपुला Scapula is long, flattened, slightly curved, sabre-shaped bone lying above the thoracic ribs and parallel to the vertebral column. Scapula एक लंबी, चपटी, कुछ कर्व्ड कटार के समान बोन होती है जो कि थोरेसिक कैविटी के थोरेसिक रिब्स के ऊपर तथा वर्टिब्रल कॉलम के पैरेलल स्थित होती है। द एक्सपेंडेड एंटीरियर एंड ऑफ स्कैपुला इज firmly united with the coracoid by ligament. Its anterior end bears a shallow depression forming a part of glenoid cavity. स्कैपुला का फैला हुआ एंटीरियर एंड लिगामेंट द्वारा कोरेकॉइड से जुड़ा रहता है। इट्स एंटीरियर एंड इसका अग्र सिरा ग्लिनोइड कैविटी का एक हिस्सा बनाता है। द ग्लिनोइड एंड ऑफ स्कैपुला इज प्रोड्यूस्ड इनटू एन acromion process to provide articular surface to the clavicle and to form a part of the foramen trioceum. Scapula is wanting. Suprascapula is wanting. यहाँ पर सुप्रास्कैपुला नहीं होती। ये देखिए फाउल की पेक्टोरल गर्डिल का दो हाफ दिखाई दे रहे हैं, एक राइट हाफ और दूसरा इस हाफ का इनर व्यू, आउटर व्यू एंड इनर व्यू। यहाँ पर देखें हम स्कैपुला दिखाई दे रही है और कोरेकॉइड दिखाई दे रही है। दोनों हड्डियाँ जहाँ जुड़ रही हैं वहाँ पर ग्लिनोइड कैविटी प्रेजेंट है। ग्लिनोइड कैविटी में ह्यूमरस का हेड आकर फिट होता है। स्कैपुला में एक उभार दिखाई दे रहा है जिसे स्कैपुलर ट्यूबरकल बोलते हैं। कोरेकॉइड का अग्र सिरा एक्रोकोरेकॉइड प्रोसेस बनाता है। Coracoid is a stout, straight, rod-like bone directed downwards and articulates with the coracoid groove on the anterolateral edge of the sternum at the base of manubrium. The upper end of coracoid on its inner side articulates with the scapula, and on its outer side it bears a deep cup-shaped depression which forms the greater part of the glenoid cavity. The upper end of coracoid is also produced into a hook-like acrocoracoid process
which articulates with the clavicle. Clavicles. Clavicles are a pair of slender, curved, delicate rod-like bones connected by their expanded upper ends with the scapula and acrocoracoid process of coracoid to enclose a circular foramen triosteum. Clavicles एक पेयर सिलेंडर कर्व्ड डेलिकेट रॉड लाइक बोन्स होती हैं जो कि अपने एक्सपेंडेड अपर एंड्स के द्वारा स्कैपुला तथा कोराकॉइड के एक्रोकोराकॉइड प्रोसेस से जुड़ी रहती हैं और यहाँ पर ये एक सर्कुलर फोरामेन ट्रायोसियम को घेरे रखती हैं. Furcula. Ventrally, the two clavicles are fused with a small interclavicle to form a laterally compressed disc or hypocleidium. वेंट्रल साइड में दोनों क्लेविकल्स एक छोटी इंटरक्लेविकल की सहायता से जुड़ी रहती हैं और एक लेटरली कंप्रेस्ड डिस्क या हाइपोक्लीडियम बनाती हैं. It is connected with the rostrum of the sternum by a ligament. The V-shaped bone thus formed is known as furcula or merrythought or wishbone. It works as a spring-like connection between the two halves of shoulder girdle. वेंट्रल साइड में दोनों गर्डल्स एक स्मॉल इंटरक्लेविकल द्वारा जुड़कर लेटरली कंप्रेस्ड डिस्क या हाइपोक्लीडियम बनाती हैं. ये एक लिगामेंट के द्वारा स्टर्नम के रोस्ट्रम से जुड़ी रहती है. इस प्रकार एक वी शेप्ड बोन बनती है जिसे फर्क्यूला या मैरीथॉट या विश बोन कहते हैं. यह बोन शोल्डर गर्डल की दोनों हाफ्स के बीच में एक स्प्रिंग लाइक कनेक्शन की तरह काम करता है. The wishbone or furcula is the fusion of a bird's two collarbones, that is clavicles, into a single structure. The furcula is attached to the shoulders and may also be fused to the sternum or breastbone or simply attached with a strong, stiff tendon. These connections protect the chest cavity during flight, helping a bird keep its body shape and internal structure intact even under great stress. This ensures that the motions and muscular contractions of flight do not break a bird's ribs or collapse its lungs. बर्ड्स के दो कॉलर बोन्स या क्लेविकल्स के जुड़ने से जो एक संरचना बनती है उसे विशबोन या फर्क्यूला कहते हैं. फर्क्यूला शोल्डर से जुड़ी रहती है. यह स्टर्नम या ब्रेस्ट बोन से भी जुड़ी रहती है या यह स्ट्रॉन्ग स्टिफ टेंडन से भी अटैच्ड हो सकती है. दीज कनेक्शंस, ये जो कनेक्शंस होते हैं ये चेस्ट कैविटी को फ्लाइट के समय प्रोटेक्ट करते हैं. इसके अलावा ये पक्षी को अपनी बॉडी की आकृति तथा
आंतरिक संरचनाओं के इंटरेक्शन से बचाते हैं। इसके कारण बर्ड की फ्लाइट के समय जबकि गति हो रही होती है या मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होता है, उस समय बर्ड की रिब्स में रिब्स जो हैं वो टकराती नहीं है, इस तरह से वो टूट नहीं पाती और लंग्स को भी कोलैप्स होने से बचाती हैं। Whenever the Astracans slaughtered a chicken, they would leave the furcula in the sun to dry out, preventing it in hopes of gaining some its divining powers. Villagers would then pick up the furcula and gently stroke it while making a wish, giving it its more common name, the wishbone. एस्ट्रोकन्स जब चिकन को काटते हैं तब ये फर्क्यूला को सनलाइट में रखकर ड्राई होने देते हैं और इसको प्रिजर्व करते हैं, ये मानकर कि इसमें कोई देवी शक्ति है। ये फर्क्यूला को विश बोन के रूप में मानते हैं, और मानते हैं कि इसके कारण से इनकी कोई भी विश पूरी हो सकती है। इसीलिए फर्क्यूला का कॉमन नाम विश बोन भी है। ये देखिए एक बर्ड और उसमें जो ये हाईलाइटेड जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये है फर्क्यूला। फर्क्यूला को मैरीथॉट भी कहा जाता है क्योंकि इसके कारण बर्ड जो है वो झुक सकती है, जैसे कि जब कोई मैन शादी के लिए अपने झुककर प्रपोज करता है, उस तरह से यहाँ पर ये फर्क्यूला बर्ड को झुकाती है, इसीलिए इसको मैरीथॉट भी कहा जाता है। ये देखिए पेक्टोरल गर्डिल फाउल की स्कैपुला, कोरेकॉइड, एक्रोमियन प्रोसेस, फोरामेन ट्रायोसियम और दोनों क्लेविकल्स आपस में जुड़ी हुई इंटरक्लेविकल्स के द्वारा और फर्क्यूला बोन बनाती हुई। ये देखिए फर्क्यूला वी शेप्ड बोन है, दो क्लेविकल्स और बीच में इंटरक्लेविकल। Next girdle, pelvic girdle. The pelvic girdle consists of two separate halves lying on either side of the synsacrum. Each half is known as os innominatum. Each os innominatum is composed of ilium, ischium and pubis. At the junction of three bones is present a concavity, the acetabulum, which provides surface for the articulation of the head of femur. Pelvic girdle दो सेपरेट या दो प्रथम हाफ्स की या आधे भागों की बनी होती है जो कि सिनसैक्रम के दोनों तरफ प्रेजेंट होते हैं। प्रत्येक हाफ को ऑस इनोमिनेटम कहते हैं। प्रत्येक ऑस इनोमिनेटम तीन हड्डियों इलियम, इशियम तथा प्यूबिस से मिलकर बनता है।
इन तीनों हड्डियों के जंक्शन पर एक कैविटी प्रेजेंट होती है जिसे एसिटाबुलम कहते हैं। इस एसिटाबुलम में फीमर का हेड आकर फिट होता है। तो देखें इस डायग्राम में पेल्विक गर्डल दिखाई दे रही है। राइट ओसिनोमिनेटम है ये, नीचे की तरफ पतली लंबी प्यूबिस, फिर ईशियम और बड़ी हड्डी इलियम। जहाँ पर ये तीनों हड्डियाँ मिली वहाँ पर एसिटाबुलम जो कि परफोरेटेड है यानी कि छिद्र में है। एसिटाबुलम के पीछे हमको दिखाई दे रहा है ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन, यहाँ से ऑब्ट्यूरेटर नर्व निकलती है। इलियम और ईशियम के बीच का जो फेनिस्ट्रा है या जो छिद्र है उसको बोलते हैं इलियो ईशिक फोरामेन। प्यूबिस से आगे निकला हुआ एक उभार है जिसको बोलते हैं प्री प्यूबिस। Ilium. Ilium is an elongated and remarkably expanded bone extending both anterior and posterior to the acetabulum and is called pre-acetabular part and post-acetabular part of ilium respectively. The inner margin of ilium is fused with the transverse process and neural spines of the synsacrum. The outer surface of its anterior part is concave and posterior part is fused with the ischium. Ilium forms the dorsal part of acetabulum. On the outer surface above the acetabulum is a projection, the antetrochanter, which articulates with the great trochanter of femur. Ischium. Ischium is also dorsoventrally flattened bone projecting backwards behind the acetabulum and parallel to the posterior part of the ilium. Ischium is fused posteriorly with the ilium but separated anteriorly from it by a large oval ilioischic foramen. Pubis. Pubis is a long, thin, curved, slender bone directed backward parallel to the ventral margin of ischium with which it is usually fused. It forms ventral part of acetabulum. Behind the acetabulum, the pubis and ischium are separated by an oval opening, the obturator foramen. Just in front and outside the acetabulum, the pubis gives off a short and blunt process, the prepubis or pre-acetabular process. तो आज हमने फाउल की पेक्टोरल तथा पेल्विक गर्डल्स के बारे में पढ़ा। थैंक यू।